सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम की क्लास बनेगी, उसके हम लोग टेली मार्क्स करेंगे और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, नाउ सी द लोएस्ट वैल्यू इज 34 एंड हमने पहले डिसाइड कर लिया है कि जो फर्स्ट क्लास है वो होगी 30 से 40। तो 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। अब हम इसके टेली मार्क्स करेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट विद टेली मार्क्स। बोलो 54 44, 54 44, 58 34, 58 40, 52 40, 73 82, 73 82, 57 88, 57 88, 39 80, 39 80, 46 36, 36, 64 85, 64 85, 49 66, 49 66, 53 58, 53 58, 75 41, 75 41, 34 62, 34 62, 57 72, 57 72, 68 80, 68 80, 51 81, 51 81. Now let us make the total. Bolo 4 5 8 4 3 6. So the total comes to 5 और 4 9 8 17 21 30 होना चाहिए बिकॉज ये कौन से महीने की सेल है? अप्रैल महीने की सेल है। सो बेटा ये सब में आपको ऐसा बोला था कि लोएस्ट 34 है, हाईएस्ट 88 है, आपको एक्सक्लूसिव सीरीज बनानी है एंड वन ऑफ द क्लास इज 60 to 70। तो क्लास लेंथ 10 की हुई बिकॉज ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। तो 60 to 70 इफ वन ऑफ द क्लास इज देयर तो इसके ऊपर क्लास लेनी पड़ेगी बिकॉज हमारा जो लोएस्ट है वो 34 है। तो दोनों में से हमें क्या करना पड़ेगा? 10 10 माइनस। सो 10 10 माइनस करके हमें पता चला कि जो हमारी फर्स्ट क्लास है वो है 30 से 40 और फिर मैंने उसके टेली मार्क्स किए। Now you are asked two questions. Let us answer each one of them one by one. First question. Find the number of days during which the sale of equipment is maximum. Now you tell me, sale of equipment maximum कब है? 50 to 60. Very good. और मुझे बोला है कि find the number of days during which sale of equipment is maximum. Now you tell me, sale of equipment maximum है 80 to 90 और वो कितने डेज के लिए है? 6 days. Yes or no? So the sale of equipment is maximum for 6 days in the class or sale that is 80 to 90. बोलो हाँ श्योर दिशा. Second question now. Second question is like this.
second question is like this, state the number of equipment sold for maximum number of days. So maximum number of days कितने हैं? 8 And what is the sale of equipment during these days? 50 to 60. So we can say okay, the sale of equipment is between 50 to 60 for maximum 8 days. That's it. Well, any questions? Out of 300 persons residing in a region, a sample of 30 persons is selected at random and the height in centimeter of these selected persons are as under. ठीक है, आपको 300 में से 30% जो सिलेक्ट किए हैं उनका डेटा आपको दिया हुआ है. Now you tell me what is LO and HO. LO 141 141. और HO. 141 HO कितना है? 168. 168. 168 अब नीचे कुछ पूछा है अपने को. Distribute these data in 6 classes and find the mid value of each class. तो बेटा आपको नंबर ऑफ क्लास देके रखा है कि नंबर ऑफ क्लास 6 होनी चाहिए. तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा क्लास इंटरवल. सो क्लास इंटरवल की फॉर्मूला है रेंज, है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लास. Yes, sir. My range is 168 minus 141 divided by 6 classes. So it is 27 divided by 6. So it is 4.5. So approximately I will take class length as 5. Correct? So yes exclusive series 11 है क्योंकि less than more than भी शायद पूछा है मेरे को. देखो, let us look at the questions. So distribute these into 6 classes and find the mid value of each class. Obtain less than type cumulative frequency, obtain more than type cumulative frequency. So it's better to go for exclusive series. So N exclusive series of height in centimeter of 30%. Okay, so let us first of all prepare the table. Okay, lowest है 141, highest है 140. हाइट की अपने बनाएंगे क्लास, फिर उसके टैली मार्क्स, देन नंबर ऑफ पर्सन की फ्रीक्वेंसी एंड देन मिड वैल्यू. चलो, सो लोएस्ट है 141. सो लेट अस स्टार्ट विद 140 फॉर आवर कन्वीनियंस. सो 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, and 165 to 170, because the highest is 168. चलिए, so let us start giving the tally marks. बोलो, 163, 150, 146, 163, 150, 146, 148, 152, 148, 152. बराबर ऐसे tally marks करते जाओ. This is your height, tally marks, frequency, and now I'll find the mid value. As we all know, mid value is nothing but upper boundary point plus lower boundary point divided by 2. So we have to do nothing but 140 plus 145 divided by 2 karo. So you will get your mid value. Everybody, 140 divided by 2. So it is 142.5. And now just go on adding 5. So 147.5, 152.5, 157.5, 162.5 and 167.5. एक दिखा दो, बाकी तो जो तुम्हारी क्लास लेंथ है वो तुम ऐड करते जाओ. So you will get your
mid values. Well, any questions to anybody? Sir. So Sir, here we screen have नहीं दिख रही है. answered this particular question. Distribute these into 6 classes and also find mid value of each class. Now we'll answer the second question, obtain less than, and fourth question, obtain more than. ये दोनों ढूंढ लेते हैं अपने सेकंड और थर्ड, सेकंड और फोर्थ. और थर्ड में क्या पूछा है? Sir, थर्ड भी देख लेते हैं ना. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हैविंग लेस देन 155 सेंटीमीटर. सो चलो पहले लेस देन ढूंढ लेते हैं अपने. So let us give the answer number 2. This was your answer number 1. Now answer number 2, less than. चलिए so यहाँ पे हम बनाएंगे लेस देन और यहाँ पे उसकी CFI. ठीक है, वहाँ भी हम बना ही सकते थे ऊपर, बट इतनी स्पेस मेरे को नहीं लेनी थी. लेस देन और ये CFI 140 45 50 55 60 65 and 70. So यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन और यहाँ पे हम लिखेंगे CFI. बोलो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 140 से शुरू करेंगे. So less than 140, less than 145, less than 150, 155, 160, 165 and 170. और अब CFI चाहिए तो ऊपर से नीचे फ्रीक्वेंसीज प्लस करते आएंगे. जैसे लेस देन 140 है तो लेस देन 140 आएगा 0, क्योंकि 140 से कम कोई है ही नहीं. फिर 0 + 2 that is 2 + 8 that is 10, 10 + 8 that is 18, 18 + 4 that is 22, 22 + 6 that is 28, 28 + 2 that is 30. So 30 is equals to my n. थर्ड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि what is the percentage of person having height less than 155 centimeter. So less than 155 कितने लोग हैं? 18. तो हम लिखेंगे कि there are 18 persons. Sir, screen नहीं दिख रही है. Okay, just a minute. There are 18 persons having their height less than 155 सेंटीमीटर. तो अब अगर मुझे परसेंटेज चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई टोटल और सामने उसके परसेंटेज. तो जब टोटल 30 तो परसेंटेज 100. तो जब 18 लोग होंगे तो वो कितना परसेंट होगा? सो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ पर्सन्स हैविंग हाइट less than 155 centimeter is 18 multiplied by 100 divided by 30. I think that comes to 60%. Fifth question is how many persons have their height between 147 and 157. Now everybody concentrate. मुझे पूछा है, let me take you to the, अच्छा एक मोर देन फाइंड करना है ना पहले, फिर वो क्वेश्चन है. पहले अपने मोर देन भी ढूंढ लेते हैं, जैसे हमने लेस देन ढूंढा. So let us do that. That is our fourth one, fourth question. So पहले अपने मोर देन के लिए वो क्लासेस वगैरह बना लेते हैं. चलो मोर देन CFI. So more than 140, more than 145, more than 150, 155, 160, 165 and 170. So more than है तो हम शुरू करेंगे नीचे से ऊपर. चलो more than 170. So let me take you to the classes. ये ऊपर उसमें more than 170 देखो
बोलो मोर देन 170 है कोई? नहीं है, नहीं है ना, तो उसका हम क्या रखेंगे? 0। फिर उसके बाद नीचे से ऊपर प्लस करते हो जाएंगे, बोलो 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 એટલે 2 आएगा ना, हाँ, फिर 2 प्लस 8, 2 प्लस 6 8, फिर 8 प्लस 4 12, बराबर, फिर 12 के बाद क्या है? सर 20। ओके 20, 20 के बाद प्लस करो 28। 28 और 30। लास्ट में 30, 12 के बाद ऊपर क्या है? 12 के ऊपर, हाँ 12 के बाद क्या है? 20, 20। 20 के ऊपर 28 और लास्ट में है आपका 30, बराबर। सो ये आपने बना दिया मोर देन। और अब बारी है हमारे पांचवे क्वेश्चन की, वो मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे। आई विल सॉल्व बिकॉज उसके लिए ये क्लास होना हमारे पास बहुत जरूरी है। अच्छा, वो जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा बोला है कि हाउ मेनी पर्सन्स हैव देयर हाइट बिटवीन 147 एंड 157। नाउ लुक एट योर क्लासेस, जरा क्लास को ध्यान से देखो बेटा। 147 टू 157 कोई क्लास दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख रही होगी, ठीक है। लेकिन मुझे फिर भी इन लोगों ने पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स। प्लीज एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। मुझे पूछा है नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन 147 टू 157। अब मजे की बात यह है कि मेरे पास ऐसी कोई क्लास ही नहीं है, तो अब मैं ये ढूंढूंगा कि 147 टू 157 किन क्लासेस के बीच में आती है। बोलो, इसके बीच में आता है 147 टू 157? यस। इसके बीच में? यस। इसके बीच में? यस। सो दीज आर द थ्री क्लासेस, बराबर, जिनके बीच में ये 147 टू 157 आता है। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लेंगे हमारी पहली क्लास। क्या है हमारी पहली क्लास? 145 टू 150, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है बेटा? 8। नाउ द थिंग इज, मुझे चाहिए 147 से, बराबर, मुझे 145 से नहीं चाहिए, मुझे 147 से चाहिए। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि 147 से 150 की फ्रीक्वेंसी कितनी। तो ये हम ऐसे अब उसका इक्वेशन बनाएंगे कि भाई क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखो, ये क्लास लेंथ कितनी है 145 से 150 की? 5। तो जब क्लास लेंथ 5 तब फ्रीक्वेंसी 8, तो 147 से 150 कितनी क्लास लेंथ हुई? 3 हुई ना। 150 माइनस 147 करके देख लो। तो जब क्लास लेंथ 3 होगी तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो आपको एस्टिमेटेड वैल्यू मिलेगी। यू विल गेट एन एस्टिमेटेड वैल्यू दैट इज, बोलो कितनी आई? 3 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 5, दैट कम्स टू 4.8। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास कौन सी है? सर एक बार वापस समझाओ ना। एक मिनट बेटा, एक मिनट ना, मैं पहले पूरा सम करूं फिर समझाऊंगा। डोंट वरी, आपको तब तक आइडिया आ जाएगा। नाउ सी, द नेक्स्ट क्लास इज 150 टू 155, ठीक है। सो 150 टू 155, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। अच्छा, ये मुझे पूरा चाहिए बिकॉज ये इस रेंज में आता है। मुझे इस रेंज के आने वाले सारी ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरी 8 पूरी की पूरी ले लूंगा मैं। उसके बाद जो मेरी तीसरी क्लास है वो है 155 टू 160, और उसकी फ्रीक्वेंसी है 4। नाउ द थिंग इज, मेरे को 157 तक ही चाहिए, मतलब मुझे चाहिए 155 से 157 की फ्रीक्वेंसी। तो जैसे मैंने ऊपर किया वैसे ही सेम यहाँ पे मैं इक्वेशन रख के सॉल्व करूंगा कि भाई जब क्लास इंटरवल 5 तब फ्रीक्वेंसी 4, तो जब क्लास इंटरवल 155 से 157 वो हुआ 2,
तो 2 में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी? तो उसकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी ढूंढूं तो इट इज 2 by 4 divided by 5 that comes to 1.6. सो टोटल अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखूं तो वो होगी 4.8 plus 8 plus 1.6. So 4.8 plus 8 plus 1.6 that comes to 14.4. એટલે approximately तुम्हारा आंसर आया 14.